ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੈ ਸਹਜੇ ਹੋਏ
ਤਿਸ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤ ਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਐਸਾ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ
भक्ति प्रमाण हुई। वाहिगुरु परमेश्वर ने सरगुण स्वरूप धारते भगत रविदास जी ਨੂੰ दर्शन ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ खड़े होकर के गल्लां बातां होईयां ਤੇ भगत रविदास जी वाहिगुरु परमात्मा के नाल गलबात करते हैं ते कहण लगे जब हम होते तब तू नाही। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू मैनू अज दर्शन दिते हैं। इन्ने सालों तो इन्ने जन्मों तो मैं तेरी बंदगी करता आ रहा हाँ। भगत रविदास जी ने गुरबाणी अंदर कृपा की है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो यो जन्म तुम्हारे देखे। हे अकाल पुरख वाहिगुरु मैं तेरे कोलों बहुत जन्मां दा विछड़िया होया हाँ। गुरबाणी के इन्हां शब्दों तो सानू ये ज्ञान मिलता है कि भगत रविदास जी, कबीर जी, भगत धन्ना जी जां होर बेअंत भगतां ने मनुखा जन्म बेअंत वेरा धारण किया है कि बेअंत वेरा मनुखा जन्म धार के हर एक जन्म में वाहिगुरु परमेश्वर की ये भगती करते रहे। भगती करते करते प्रारंभ तो इन्हां दी खत्म हो जाती सी ते इन्हां दा शरीर मिल जाता सी। दूजी वेरा फिर इन्हां नूं शरीर मिलता सी। ये वाहिगुरु परमेश्वर की भगती करते सी। प्रारंभ खत्म हो जाती सी, फिर शरीर खत्म हो जाते सी, फिर नवा शरीर इन्हां नूं मिलता सी। तो भगत कबीर साहब जी ने भी, बाबा रविदास जी ने भी यही जिक्र किया है कि पूरब जन्म हम तुमरे सेवक। भगत कबीर साहब जी बाणी कि अब तो मिटिया ना जाए। ये अकाल पुरख वाहिगुरु मैं पहले जन्मां विच भी तेरा भगत सी। हुण ये गुरबाणी अंदर भगतां के आपां नूं ये ज्ञान नहीं है। आपां नूं ये नहीं पता कि पिछले जन्म दे विच आपां की सी, पशु सीगे, पंछी सी जां फिर मनुष्य सी। आपां नूं ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी कमाइयां नहीं हैं, बंदगी नहीं है। जदों आपां बंदगी करांगे, नाम जपांगे, गुरबाणी पढ़ांगे, गुरु वाले बनांगे, फिर एक दिन आपां नूं जदों ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, फिर पिछले सारे जन्मां की सोची हो जाएगी। फिर पिछले सारे जन्मां का सानूं ज्ञान हो जाएगा कि पिछले जन्म के मैं की सी, उस तो पिछले जन्म में की सीगा, उस तो पिछले जन्म के मैं की सीगा। ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञानियां नूं हुंदा कि ये जिन्ने भगत ने ब्रह्म ज्ञानियां पूरब जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाए। कबीर साहब जी कहने ने अकाल पुरख वाहिगुरु मैं पिछे भी तेरा सेवक से। भगत रविदास जी कहते बहुत जन्म बिछड़े थे माधो यो जन्म तुम्हारे देखे। सतगुरु जी कृपा करो इस जन्म के मैनू दर्शन दीदार दे के निहाल कर दो ताकि हुण जन्म ना लेना होए। जन्म लै लै किसी थक गया ताकि हुण कृपा करो। ते फिर इस जन्म दे विच आपे अकाल पुरख वाहिगुरु ने दर्शन दिते ते भगत रविदास जी कहन लगे वाहिगुरु जी इन्ने जन्मां विच मैं भगती ते करता रहा पर तेरे दर्शन क्यों नहीं हुए? उसका कारण ये सीगा कि जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। जदों मैं सी मेरे अंदर मैं करता हाँ, मैं भुगता हाँ, मैं कीता, मैं करांगा, मैं कर रहा हाँ। जे मैं ना होता तो ये काम नहीं सी होना। ये सब कुछ मैं कीता, मैं करवाया। ये वाहिगुरु परमेश्वर नूं मैं चंगी नहीं लगी। वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी आखते हैं कि ठीक है जे तू है तो तू ही करता रहे, मैं तेरे कोले नहीं आना। ये सतगुरु जी का जिन्ना चिर अंदर होवे होंदी है ना
उन्हां च वाहिगुरू परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्ना चਿਰ साढ़े अंदर हौमै पई है उन्ना चिर बाकी के सारे रोग भी होणगे, ईर्खा भी होगी, द्वेष भी होगी, निंदा चुगली भी होगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब कुछ उदों तक रहणगे जदों तक हौमै अंदर है। जे अंदर हौमै निकल जाए फिर ये सारे विषय विकार जिहड़े ने भी अपने आप निकल जाते हैं। फिर अंतश्करण जिहड़ा ये साफ हो जाता, उज्जवल हो जाता है। ये इत्थे किसी पिंड दे विच कहते ने एक खूह सीगा ते सारे लोग पिंड दे खूह चों पानी भरते सीगे। एक दिन खूह दे विच बिल्ली डिग पई, बिल्ली डिगी 2 दिन हो गए ते जिहड़ा भी कोई पानी भरे पानी चों मुश्क आवे। हुण अंदर झाँक के कोई वेखे ना ते सारे पिंड दे लोग सीधे साधे भोले भाले लोग होंदे सी। पिंड दे विच एक संत रहिंदे सी महात्मा, उन्हां कोल चले गए, बेनतियां कीती महापुरुषो साडे खूह दा पानी खराब हो गया, मुश्क आउण लग पिया, किरपा करो तुसीं कोई मंत्र दो पानी साफ हो जाए। महापुरुष कहण लगे चलो ठीक है देखते हैं। महापुरुषों की जी निगाह होंगी ना दृष्टि दूर तक जाती है, आम लोगों की दृष्टि उत्थे तक नहीं जा सकती। ते संत जी ने जो खूह के विच निगाह मारी ते की दस्या कि उस बिल्ली मरी पई है। ते महापुरुषों ने कहा पिंड वालियां नूं कि इदां करो पहला बिल्ली पानी डोल बाल्टी नाल कड्डो बाहर सुट्टो, उस तो बाद 100 डोल पानी का कट के डोल दो बाहर, तो उस तो बाद जो पानी उतरूगा वो साफ पानी होगा। महापुरुषों ने जुगती दस दी, अपने आसन के डेरे ते आ गए। हुण ये जिहड़े लोग भुलक्कड़ सीधे साधे इन्हां की कीता कि वो बिल्ली जिहड़ी मरी हुई सी खूह के किनारे ते लगी हुई पानी च तरदी, इन्हां लोगों ने पानी कढ़ना शुरू करता। बिल्ली कटे ही 100 डोल 200 डोल 500 डोल भी काटते पानी, आखिर पानी फिर मुश्क, फिर महापुरुषों को आ गए, कहते जी पानी साफ नहीं हुआ महाराज। ते संत जी फिर गए, जाके देखा तो बिल्ली के अंदर मरी पई है जीवती थी। महापुरुष कहने लगे भुलक्कड़ लोगो तुसीं भावें रात दिन मेहनत करते हो, भावें सारा खूह खाली करते हो, मुश्किल नहीं जे जाना। तुहानूं कहा सीगा पहला बिल्ली बाहर कड्डो मरी हुई, फिर 100 डोल पानी का बाहर कड्डो। तुसीं पानी कड्ढी जाते हो, बिल्ली कड्ढी ना, ये पानी नहीं साफ नहीं होना। तो फिर इन्होंने समझ आई कि इन्होंने पहला बिल्ली कड्ढी फिर पानी कड्ढिया, पानी साफ हो गया। गुरु के सिखों के दृष्टांत है बिल्कुल इन कहना साडा जिहड़ा शरीर है ये हैगा खूह, ये अंदर जिहड़े शुभ गुण ने करना ममता मैत्री उपेक्षा श्रवण मनन निध्यासन साम दाम श्रद्धा उपराम समाधान प्रतीक्षा सत संतोख, ये सारे शुभ गुण पानी है। ये हौमै रूप बिल्ली मरी पई है। जे हौमै रूप बिल्ली मरी होने करके ये सारे शरीर के अंदरों सारे अंतश्करण के अंदरों बदबू आती है। बदबू केड़ी है? बस यही कि मैं कीता, मैं करांगा, मैं कर रहा हाँ, ये बदबू जिथे भी बैठते हैं ये बदबू साढ़े मुँह राही बाहर निकलती है। हर वेले मैं करी जाते हैं, ते हर वेले निंदा चुगली करी जाती है, अपने आप को चंगा खुआई जाते हैं, दूजे की निंदा ये साड़ी निगाह पहुँचती नहीं। तो महापुरुषों की दृष्टि दूर तक होती। महापुरुष श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कोले या साधुओं कोले जाते हैं, कृपा करो महाराज सानू नाम के बख्शिश करो, मेरे अंदर शुभ गुण आ जान। ये लोग मेरी निंदा करने लग पे। तो महापुरुष देखते हैं कि तेरे अंदर जी ना हौमे ये है, तू ऐ कर पहला हौमे नूं बाहर कर, हौमे नूं छड्ड ते उस तो बाद 100 डोल होर
पानी का करदे भाव ये अंदर जेडे औगुण ने विद्या चुगली इत्यादि इन्हां नूं कढ फिर तेरा अंतःकरण साफ हो जाएगा। फिर तेरे अंदरला जेड़ा शुभ गुणा रूपी पानी साफ हो जाएगा। फिर तेरे अंदर खुशबू आएगी। फिर तू जितने भी बैठेगा तू ही करता रहेगा। परमेश्वर तू कीता, तू कर रहा है, तू करावेगा। तो इस प्रकार भड़कड़ लोग की करते हैं, महापुरुषों की गल से गौर नहीं करते। पहला वो निंदिया छड्डण की कोशिश करते हैं, पहला चुगली छड्डण की कोशिश करते हैं, पहला काम को छड्डण की कोशिश करते हैं, पर कामयाबी नहीं मिली। फिर महापुरुषों को आते जी कामयाब नहीं होए। बाणी बहुत पढ़ते हैं, नाम बहुत जपते हैं, सिमरन बहुत करते हैं, गुरु घर की यात्रावां सेवावां दान पुण्य सब कुछ करी जाते हैं, फिर नहीं बनती पई कि महापुरुष फिर साढ़े अंतःकरण रूपी खूह विच निगाह मार के वेखदा भलिया तेनू क्या सी पहला हौमे नूं बाहर कढ। हौमे तां तूं नाल नहीं करदा, बदबू तां आउंदी रहेगी ना जिन्ना चिर मरी हुई बिल्ली पूछ पई है। फिर ये जीव नूं किते समझ आउंदी है, फिर ये हौमे नूं छड्डदा है। जदों हौमे छड्डदी फिर अंदरों विकार निकलदे ने, फिर ये जीव ब्रह्म दा रूप हो जाता है। फिर ये अंदर के गुण जिहड़े वो पीण योग हो जाते हैं। भाव ये कीते हुए काम, ये बोल बाणी, ये करतब, ये व्यवहार वाहिगुरू की दरगाह च प्रमाणित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार गुरसिख को बाणी आप पढ़ते हैं, नाम जपते हैं, पर हौमे नाल नहीं करते हैं। मैं पाठ किया, मैं करांगा, मैं कीता, मैं गुरुद्वारे गया, मैं प्रसाद करवाया, मैं इन्हें लख दान दिते, ये सब कुछ बदबू होए अंदर। ये करके फिर नहीं बनती सदन ब्रह्म का दर्शन नहीं होता। ताते भगत रविदास जी कहते हैं ये जी बला है ना, ये बिल्ली होवे दी मेरे अंदर भी मरी पई सी। ये करके ही मैं करोड़ा जन्म धार चुकिया हाँ, बहुत जन्म विछड़े थे मालो। ये करके ही मैं तेरे कोल विछड़े आ गया ते हुण वाहिगुरू ने कृपा की, ये हौमे जिहड़ी अंदरों चली गई। सतगुरां ने गुरबाणी विच कृपा की है। हाँ हाँ मैं विचों खोवे, दूजा बेटा एको होवे, ते हाँ मैं कीता। ये जे तुसीं अंदरों खो देओ, खत्म कर देओ, ते वाहिगुरू परमेश्वर दा रूप बन जाओगे। भगत रविदास जी ने जब हम होते कि जदों तक आप सारे जिन्ने भी इत्थे बैठे हैं, जदों तक आप हाँ, जदों तक आप आखते रहोगे कि मैं हाँ, तब तू ना, उदों तक वाहिगुरू तू हो ही नहीं सकता, तेरा दर्शन हो ही नहीं सकता, तेरा रूप असीं हो ही नहीं सकते। फिर अब तू ही मैं ना, हुण मेरे अंदरों मैं जिहड़ी सीगी ना ये मिट गई है, ते हुण तू ही तू आ। जिथे भी दिखता उथे तू ही तू। कबीर साहब जी कहते हैं कि जदों तक मैं करता सी तो मैं ही सी, मैनूं होर कुछ दिखता ही नहीं सी, ते तू करता तू हुआ। जदों मैं तू करन लग पिया ना, ये अकाल पुरख वाहिगुरू तू ही है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अकाल उस्ताद की बाणी जब पौंटा साहब उच्चारण की ते सतगुरु जी अकाल की उस्ताद करते हुए जरस कुनी, खरस कुनी, नदस कुनी, नरस कुनी, बरछस कुनी, बरछस कुनी, पतस कुनी, पतस कुनी, छतस कुनी, छतस कुनी, उधस कुनी, भजस कुनी, रटस कुनी, रटस कुनी, जमीन कुनी, जमा कुनी, मकी कुनी, मका कुनी, अभूर कुनी, अभय कुनी, अछू कुनी, अछय कुनी, तू ही 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 तू ही। ये सतगुरु जी के तू ही करते हुए ऐसी रट लगे। ये भाई मनी सिंह साहब जी लिखते तू ही लिखते कागज भरते। कितना चिर बाद सतगुरां की जब समाधि उत्थान हुई ते महाराज साहब जी कहने लगे भाई साहब जी की लिखिया, महाराज तू ही लिखिया। कितनी मेरा महाराज 16,000 मेरा लिखिया। तो हर एक छंद के पंक्ति या अखीर च काउंटिंग चलती है, गिनती होती है, वो पता लगता कितने शब्द आ गए हैं। महाराज 16,000 मेरा तू ही तुसानू उच्चारण किया है। कलगीधर पातशाह का 16,000 मेरा कट के
ਇਹਨੂੰ 16 ਵੇਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਵੇਰਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ 16,000 ਵੇਰਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। तो ऐसे गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी तू ही करते तू ही परमेश्वर का रूप हो गए। इतने भगत रविदास जी कृपा करते हैं, अब तू ही ये काल वाहिगुरु हुण तू ही है, हुण मैं नहीं। भाव के हुण निगाह दे विच ब्रह्म आ गया। हुण जिथे भी वेखदियां जह जह देखो तह हजूर, दूर कतो हो ना जाई। वो वाहिगुरु परमेश्वर सानू छड़ के कदे दूर नहीं जाता। और जदों भी अखां खोलदियां जिथे भी खोल के वेखदे हैं वाहिगुरु तू ही दिसदा। जदों अखां मीटदे हैं ते साडू साडे अंदर रब दिसदा है, ते जिथे भी दृष्टि जांदी रब तू है चारे बने। ये कृपा तां होई है, खेड तां वरती है जे हमें उसे त्याग दिता है। अनल अगम जैसे लहर मैं खोदद, जल केवल जल माही। भगत रविदास जी हुण कुछ दृष्टांत ते प्रमाण दे के सानू समझाते हैं कि वाहिगुरु परमेश्वर किस तरह नजरी आउंदा। जे आपां ने ये गल सुन लई कि वाहिगुरु परमेश्वर चारे पासे हर एक जीव दे विच होई है, पर आपां ने ये गल नूं मनना नहीं, क्योंकि साडे वास्ते साडे सोच मुताबिक तो यह हो ही नहीं सकता कि सारे रब दिसे। पर यह होता है जे मेहनत करिए, अभ्यास करिए, कमाइयां करिए, कई जन्म लग जाएंगे, फिर एक दिन ये अवस्था आएगी कि जिथे रब ही रब दिसेगा, उस तो बिना कुछ है ही नहीं। वो दृष्टांत क्यों नहीं दे रहे हैं? अनल अगम जैसे लहर मन ओदर, ओदर नाम है समुद्र का। अनल कहने हवा नूं, ते जदों समुद्रां दे विच हवा चलदी ने अगम बड़ी तेजी दे नाल, फिर की होंदा समुद्रां चों लहरां उठदियां। हवा दे वेग नाल लहरां इन्नियां तेज हो जांदियां ने कि आकाश तक छू जांदियां ने, समुद्र तो बाहर आ जांदियां ने, बिल्डिंगां मकानां नूं ढक दिंदियां ने। इसे प्रकार लहर जिहड़ियां वो एक नहीं होंदी, कई लहरां होंदियां ने, एक दूजे तो अगे दौड़दियां ने, फिर जांदियां किनारे तक जाके वो लहर मिट जाती है, दूजी पिछे टुरी आती है, वो पिछे होर टुरी आती है, पिछे होर टुरी। ये लहरां बनदियां कितों ने किसी को कुछ नहीं पता। ये लहरां निकलदियां कदों ने कितने ने किसी को कुछ नहीं पता। तो इसी प्रकार जल केवल जल माही, फिर की होना अखीर के किनारे के जाके जा जदों हवा शांत हो जाए, फिर ये सारियां लहरां मिट जांदियां। फिर जल केवल जल माही, सिर्फ पानी का रूप ने तो पानी में ही समा जाना है। इसी प्रकार सतगुरु जी कृपा करते हैं, ये जो संसार है ना ये समुद्र है, ते आपां जिन्ने भी तुरे करते हैं आपां लहरां, करोड़ा लोग जम रहे हैं, करोड़ा लोग मर रहे हैं, ते हर एक लहर हर एक बंदा दौड़ता पिया है, सवेर तो शाम की, शाम तो सवेर की, एक दूजे तो अगे मैं निकल जावां, ये तो वध मैं हो जावां, ऐ दौड़ लगी पई है हर एक बंदे दी, एक दूजे नूं फेर करन दे चक्कर च पए हुए हैं। फिर की हुंदा जदों किनारा आउंदा है ना, जदों मौत आउंदी है, जदों हवा शांत हो जाती है, जो साडे अंदर हवा है श्वास ने जिहदे आसरे असीं भजे करदे हां, जो हवा चलूगी तां लहर उठो, जे हवा ना होवे तो समुद्र शांत रहंदा, लहर बनदी। तो इसी तरह साडे अंदर जे श्वास ने हवा जिहदे आसरे असीं भजे करदे हां, जदों ये हवा ठंडी हो जाती है फिर असीं खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ते असीं खत्म होए ते होर लहर पिछे बनी आ रही है, होर मनुख आ रहे हैं दुनिया दे विच, पर अखीर विच हुंदा फिर की है? जल केवल जल माही। ते आपां सारे कित्थों उठे हां भाई? वाहिगुरु परमेश्वर तो ही पैदा होया, ते अखीर के वाहिगुरु परमेश्वर दे विच ही समा जाते। ब्रह्म ज्ञानियां के बाबा ते लिखिया गुरबाणी के हर हर जन कोई एक है, बेब विचार कछ नाहे, जल के उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाए। पानी ते पानी की लहर कोई होंदियां ने, देखण विच ही दो प्रतीत होंदे हैं,
ਬਈ ਆ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਮਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੀਜੀ ਪੂਛੇ ਜਲ ਕਹਾਂ, ਵਸਨ ਪੂਛੇ ਸੂਤ, त्यों जीव पूछे ब्रह्म कहाँ, भूला फिरे कमूत। ये खोटी मत वाला बंदा ये पुछदा करदा है तो दूजियां की रब किथे है, रब किहो जिहा है। दृष्टांत दिता कि बीची पूछे जल कहाँ, बीची कहंदे ने लहर नूं। जदों लहरां उठदियां ने ना वो लहरां एक दूजियां नूं पुछदियां ने फिर नहीं भैण पानी किहो जिहा हुंदा है, कहते पानी नहीं वेखिया। दूजी लहर फिर कहने नहीं भैन पानी तो मैं भी नहीं वेखिया कह जाऊँगा। चल दूजी वो वड्डी लहर को पुछदे उन्होंने पता वड्डी को जा वड्डियां ने नहीं भैने पानी 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 दुनिया करी जाती पानी कदे वेखिया नहीं, मैं दस दे दिखा दे कह जाऊँगा। वो कहते पानी तो मैं भी नहीं कदे वेखिया। जिहड़ियां पानी की लहरां ने उही पुछदी फिरदियां ने कि पानी कह जाऊँगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंदर एक भ्रांति पैदा हो गई कि आप तो लहरा हाँ, लोग आपको लहर आखते हैं, तरंग आखते हैं, आप पानी थोड़ो। और वो भ्रांति किने पैदा की? आप लोगों ने। आप ही कहते हैं ना कि लहरा है। वो अपनी आवाज़ सुन सुन के लहर अपना वास्तविक स्वरूप भुल गई कि मैं तो पानी हाँ। इसी तरह बसन पूछे सूत, जरा कपड़ा आप पाया ना ये कपड़ा पुछदा दूजे नहीं भैन धागा कह जाऊँगा, कदे धागा वेख्या ही नहीं कि नहीं एक धागा तो मैं भी नहीं वेख्या। चल वो पुछते हैं दूजा कपड़ा तीजे को पुछदा, तीजा चौथे को पुछदा। क्यों? एक धागे का ही तो रूप है, ताना पेटा धागे इधर उधर करके ते कपड़ा बनता। हम कपड़ा ही पुछदा पिया है कि दूजे मुँह ते धागा कह जाऊँगा, मैनूं कोई दस दे। क्यों? भ्रांति। हुण कपड़े नूं ते भ्रांति किवें हो गई, किहने पैदा की? आपां लोकां ने। आपां ही आखदे हां ये ते कपड़ा है, रेशमी कपड़ा है, कॉटन है, मुलायम है, फलाना है, ये उन्ना है। धागा क्या किसे कि भाई आप फलाने धागे का कपड़ा बनना। वो अपनी आवाज़ को सुन सुन के साढ़े बोलों को सुन सुन के कपड़े को भ्रांति हो गई, भरम हो गया कि मैं कपड़ा हाँ। हुण धागा कोई वखरा होगा किते तो जे भ्रांति हो जाए ना उन्होंने वास्तविक स्वरूप कोई समझा ही नहीं सकता। क्यों? जीव पूछे ब्रह्म कहाँ, भूला फिरे कमूत। खोटी मत वाला ये बंदा कि दूजे को पुछदा नहीं भैन रब कह जा, रब रब लोग करी जाते हैं, कदे वेख्या नहीं, कदे सुनिया नहीं। हुण इहनूं भ्रांति हो गई। भ्रांति किवें हो गई? आपां खुद वास्तविक स्वरूप अपना रब ही है, रब ही हाँ आपां। जिवें लहर पानी ही होंदी है, जिवें कपड़ा धागा ही हुंदा है। पर उन्होंने तो भरम हो जाता कि मैं धागा नहीं हाँ, मैं कपड़ा हाँ। भरम हो जाता कि मैं लहर हाँ, मैं पानी नहीं हाँ, पानी कोई वखरा होगा मेरे को। तेनी आपां लोकां नूं भरम हो गया कि रब कोई वखरा होगा, मैं रब थोड़ी। ये भ्रांति आपां नूं किहने दित्ती, किहने पैदा की साडे अंदर? असीं खुद। जदों बच्चा पैदा हुंदा उहदे अंदर आपां भ्रांति पा देंदे, भरम पा देंदे। है वो बच्चा रब दा ना, उसका नाम है कोई ना, उसका देश है कोई ना, उसकी कोई जात है ना, उसकी कोई भात है। उन्होंने ये भी नहीं पता कि मैं बंदा के पशुओं के जानवर, उन्होंने कुछ भी नहीं पता होगा। मेरी माँ कौन, मेरा प्यो कौन, कितने मैं जन्मिया, जात कौन मेरी की है, उन्होंने कुछ भी नहीं पता होगा। वो सिर्फ ब्रह्म का रूप होता, ब्रह्म के नाम जुड़े होगा। ये भ्रांति आपां पैदा करते हैं। जिवें जिवें वड्डा होंदा 4 6 8 महीने 10 महीने साल 2 साल का ਉਹਦਾ नाम ले लेके बुलाउण लग पैंदे आ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ।
ये भ्रांति आपां लोकां ने उहदे अंदर पैदा की, रब दा कोई कसूर नहीं इहदे च। फिर उहदे अंदर भ्रांति होंदी जदों वो होंदा ना 15 16 20 साल का, फिर पक जाता है। फिर कहना लै मैं ते फलाना हाँ, मैं बंदा हाँ, ये मेरा नाम आ मेरी जात आ मेरा धर्म आ, रब दा कोई होर होएगा। ये भ्रांति आपां लोकां ने अपने अंदर भी दा, ये भ्रांति किने कीती? अपने मापियां ने, साख संबंधियां ने, ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੇ 'ਚ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਆ ਭਾਈ। तो इसे तरह हर एक चीज़ को भ्रांति हो जाती है। इतने पातशाह कृपा करते हैं जल केवल जल माही, जिवें पानी के विचों लहरां उठदियां फिर पानी का रूप हो जांदियां, तिवें ही भगत नामदेव जी आसा राग के अंदर सानू समझाउणा कीता है कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, सूत एक मन सकसा हंस जैसे, बोध बोध प्रभ सोई, जल तरंग हर तेन बुदबुदा, जल ते भिन्न न होई। हुण भगत कबीर नामदेव जी ब्रह्म ज्ञानी ने, उन्होंने कहा कि भाई इत्थे कोई बंदा बुंदा नहीं है, इन्हीं चक्रां च ना हो, भ्रांतियां च ना हो, कोई पशु नहीं है, कोई सप जानवर नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। ये सारा वाहिगुरु ही वाहिगुरु है, उन्हें आकार ही धारण की हुई है, सब वाहिगुरु। गोबिंद बिन नहीं कोई, पर दृष्टांत में दिता, सूत एक मन सत साहंस जैसे, ओत ओत प्रभ सोई। माला वेखी कदे? माले दे विच की हुंदा है? धागा। धागा तो नहीं कई तरह का होगा, एको ही होगा, पर धागा दिसदा नहीं। दिसदा की है? मन के, मन सत सांस जैसे। वो मन के 1000 भी हो सकते हैं, मन के लख भी हो सकते हैं, मन के 100 भी हो सकते हैं, मन के अड्डो अड़ प्लास्टिक के हो जान, लक्कड़ के हो जान, लोहे के, सोने के, स्टील तांबे के हो जान, पर मन के किहदे आसरे ते टिके हुए हैं? सूत धागे के आसरे। धागा कढ़ते ही विचों मन के खिंड गए, मन के रह नहीं सकते। तो इसे तरह भाई इतने आकार ही है, कोई काला, कोई पीला, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई, सारियां दे विच की है? धागा तो एको ही है ना, रब स्वास तो एको ही है, चेतन सत्ता सारियां विच एको ही है, जिहदे आसरे आपां सारे टिके हुए हैं। ये दृष्टांत दिता कि तुसीं बाहर निजाम ना मारिया करो। हुण धागा दिसदा नहीं, दिसदे बाहर दे मन के, इसे तरह आपां सारे मन के आपां दिस रहे हैं। साडे अंदर जिहड़ा सानू रोकण वाला, साधण वाला, संभालण वाला, वो सानू दिसदा नहीं, उहनूं देखना है। तो इसे तरह होर दृष्टांत दिता, जल तरंगर फेन बुदबुदा, जल ते भिन्न ना होई। पानी, पानी की लहर, झग, बुलबुले, तो ये सब की ने पानी तो वखरे नहीं है, वजूद इन्हां दा पानी है, पर अज्ञानता करके किसी बंदे को पुछो कि ये की है, वो कहे कि छप्पड़, वो की है, ये नदी है, ठीक है, ये की है, ये नाला है, ये दरिया, ये समुद्र है, ये की है, ये बुलबुले, ये की है, ये झग्गा, ये की है, ये लहरा है। ये अज्ञानी बंदे की कहावत कहना, आप भी यही कहेंगे, ये तो छप्पड़ है। हुण जिहड़ा उन्हां दे विच उहदा असली स्वरूप वो आपां नूं कदे दिसिया ही नहीं। छप्पड़ च पानी, नदी च पानी, नाले च पानी, दरिया च पानी, समुद्र च पानी, झग्गे च पानी, बुलबुले च पानी, लहर च पानी, आकाश चों डिगदियां बूंदां चों पानी, पर आपां कदे पानी दिसदा ही नहीं। बड़ियां मोटियां मोटियां बूंदां पैंदियां भाई, बारिश हो रही, आकार को वेख के आपने नाम रख लिया। हम जिहड़ा नाम रखे बेचारे उन्होंने भ्रांति हो गई जी, उन्होंने समझ लिया कि लोग मैनू छप्पड़ कही जाने तो मैं छप्पड़ ही होवांगा, लोग मैनू बूंदा कड़ियां कही जाते हैं तो असीं बूंदा ही होवांगे, कड़ियां ही होवांगे। वो भी साडे बोलां नूं सुन के अपने असली स्वरूप को भुल गए। पर सारियां दे विच की है? पानी। ज्ञानवान को पूछो, वो कहेगा भाई छप्पड़ भी पानी, दरिया भी पानी, कड़ियां भी पानी, हर च पानी। इसे तरह इतने किसी को पूछो ये कौन, ये सिख आ, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये जट है, रविदासी है, फलाना है,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਰਵਿਦਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਰੱਬ, ਇਹ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀੜੀ ਹਾਂ। बहुते बोल यही निकलते हैं रोज। ब्रह्म ज्ञानी को ना भाई ये भी रब्बा। तो इस करके वास्तविक स्वरूप आपां नूं कदे दिसदा ही नहीं, आपां नूं पानी कदे दिसिया ही नहीं है। अखां दे सामने देख भी रहे हैं पर कहांगे कि छप्पड़ है, अज्ञान का पर्दा। तो इसी प्रकार बहुत सारे दृष्टांत कवि रविदास जी दे रहे हैं। ते कहते हैं जल केवल जल माही, जिमें पानी केवल पानी का रूप है। 2 मिनट वास्ते हवा की उपाधि करके लहरां बनदियां ने, फिर पानी में समा जांदियां। गुरमुखो आपां भी फिर वासना की उपाधि करके या हवा श्वासां की उपाधि करके बंदे बन गए हाँ। 5-7 मिनट वास्ते कह लो या 80-90 साल वास्ते, अखीर वास्तविक रूप अपना रब है। कि आप रब दे विच समा जाना ताकि भ्रांति तो बाहर निकल के जिउंदे जी श्वासां दे चलदे जे रब दे विच लीन हो जाए तां मुक्त हो जावांगे, नहीं तां फिर रब च अभेद हो के दूजा जन्म धारांगे, उत्थे फिर रब ही होवेगा। माधवे क्या कहिए ब्रह्म ऐसा। हे वाहिगुरु परमेश्वर ब्रह्म की कहिए कि ऐसा कदे आपां ने देखिया कि भ्रांति तो भरम किहो जिहा हुंदा। जैसे भरम बेअंत तरह का वेदां शास्त्रां विच 5 प्रकार का भरम लिखिया। भेद भरम, करता भरम, पुन संग भरम, विकार ब्रह्म इतर जग सत्य है, पांचों भरम संसार। ये 5 प्रकार का भ्रम है। वो पहले नंबर का भेद भ्रम, ये भी 5 प्रकार का। जीव ईश का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ का भेद, जड़ चेतन का भेद, ते ईश ते जड़ का भेद। ये आगे बड़ी लंबी इन्हां दी विस्तार है। ते महाराज साहब कहते हैं कि भ्रम किहनूं आखदे ने, वो दसदे हन जी। जैसा मानिए कोई न तैसा। असी जिस वस्तु नूं जिहो जा मन्निया होया है, वास्तविक विच वो जा नहीं है, इहनूं भ्रांति आखदे। असी संसार नूं जिहो जा मन्निया, संसार वो जा नहीं है। अखां खुले के पता लगदा। असी जेड़े बंदे नूं जिहो जा मन्निया, वास्तविक वो बंदा वो जा नहीं है। असी मन लिया कि बंदा बड़ा वधिया है, संत है, धर्मात्मा है, महात्मा है। जब पता लगता ना सारे घर का भेद लेके मार के ठगी ऊंचा दे के सब निकल जाता, फिर पता तो बंदे नूं सी जा समझी बैठे सीगे, इन्ना खतरनाक निकलिया। आए गुरु दी सिखो, संसार नूं जो असी समझी बैठे वो नहीं है, इहदा रूप कुछ होर है। असी रब नूं जिहो जिहा समझी बैठे ना कि रबा कम करना, रब भी वो जा नहीं है, साडी समझ तो कितनी परां है। तो जेड़े बंदे नूं सी जे जा मन्नी बैठा, बंदे दे विच असली स्वरूप जेड़ा वो है, ते इहनूं आखदे ने भरम के जे जा सी जिहनूं मन्निया वो जा ना होवे, ओहदा रूप कुछ होर होवे। ते गुरबाणी विच लिखिया कि वो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये ज्ञान तां होना है, उस अवस्था विच उच्चारण कीता है जदों ब्रह्म ज्ञान होना किसी को, उदों पता लगना कि ये संसार सच्चे की कोठड़ी है, ये सारे जीव सच्चे के रूप ने। ये उदों की पंक्ति है उस अवस्था। हुण दी अवस्था की है, कूड़ है कूड़ मन मूड़ लग नाम रूड़, साचे को मन आयो ताते साचो सो आयो है। ये संसार झूठ है, कहाँ से लिखिया गुरबाणी। एक हुण जिथे आपां जिस अवस्था च बैठे हैं उस अवस्था की बयान है। मना ये संसार झूठ है, छड़ दे। जदों तेन ब्रह्म ज्ञान होगा उदों तेन पता लगना है कि संसार सच है, सारे जीव सच ने, यही परमात्मा ने। तो ये भ्रांति जी बहुत बड़ी बंदे नूं होई पई है कि मैं बंदा हाँ, मैं रब नहीं हाँ। रहाओ नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। ते दृष्टांत देते ने कि भ्रांति होंदी है जिहदे विच की हुंदा है कि जो चीज़
सानू दिस रही वो जी ना होवे, इहदे वास्ते समान चानण की लोड़ होती है। समान चानण का एक होंदा विशेष एक समान भ्रांति जदों बहुता हनेरा होवे ते सानू भ्रांति नहीं, और पूरा हनेरा असीं तुरे जाए सानू दिसदा ही कुछ नहीं, कोई बंदा होवे, सप होवे, रस्सी होवे, कुछ भी होवे, सानू भ्रांति नहीं हो सकती। बहुती रोशनी हो शिखर दुपहरा तां भी भ्रांति नहीं होगी, तां ते दिसदा है कि रस्सी है, ये सप है, ये बंदा है, ये पत्थर है, पहाड़ है। ये भ्रांति उदों होंदी है जदों समान रोशनी होवे, भाव ना रात होवे ना दिन होवे, शाम जिहा वेला होवे, थोड़ा थोड़ा हनेरा होवे, तुरे जांदे रस्ते ते रस्सी पई होई आ, हुण दिस पई, जे बहुत हनेरा हुंदा फिर दिसणी नहीं सी, भ्रांति नहीं सी होनी, बहुत ही रोशनी होनी सी, फिर उन्हें साफ दिस जाना सीगा कि रस्सी डरदे ने, हुण डर पई राज किड्डा वड्डा सप बैठा, तौबा तौबा है वो रस्सी मरी हुई है, ना चल सकती, ना फिर सकती, ना उसने डंग मार सकती, ना साडा कुछ बिगाड़ सकती। भ्रांति साडे अंदर हो गई कि सप बैठा है, सांस उत्ते गए साडे, पसीने नाल भिज गए, छाती थर थर कंबण लग गई कि आ सप असीं मन्निया। तो इसे तरह भाई पशु जिहड़े ने वो हनेरे च ने, उन्हां नूं भ्रांति नहीं होंदी, क्योंकि बिल्कुल धुप्प हनेरे च ने सुत्ते पए ने। जिहड़े देवते ने रोशनी विच ने, ज्ञान विच ने, उन्हां नूं भ्रांति नहीं होंदी, उन्हां नूं साफ दिसदा पिया। भ्रांति किहनूं होंदी है? मनुख नूं। क्यों? मनुख ना पूरा पशु है ते ना पूरा देवता है। जे संध्या वेला होना है, शाम का टाइम हो, इनू पता ही नहीं लगता कि बंदे का असली रूप की है, इनू पता ही नहीं लगता कि मेरा असली रूप की है। और पता जब लग जाता कि है तो बंदा जिहा है, यह नहीं पता कि चोर है कि साध है। भ्रांति इनू पता ही नहीं लगता कि संसार का असली रूप की है, इनू पता ही नहीं लगता कि माया का असली रूप की है। माया 10 लाख रुपये है कि बढ़िया है, चुकना है तो फिर भ्रांति नाम है कि उहदा कह देने हैं मारे जाएंगे। भ्रांति भ्रांति मनुख नूं होंदी कि मनुख शाम के वेले विच खड़ा है, हुण इहने कमाई करके रोशनी च जाना, ब्रह्म ज्ञान च आउणा, कि इहने ना कमाई करके इन्हें हनेरे च जाना, पशुओं वाल जाना, ये डिपेंड है। तो इस प्रकार इत्थे भ्रांति जिहड़ी है वो मनुखां नूं ही होंदी है। ते दृष्टांत दे के कहंदे एक राजा सी अपने सिंघासन ते सो गया, नींद आ गई उहनूं, ते सुत्ते पिया वो भिखारी बन गया, बड़ा बड़ा भिखारी बन के लोगों को भीख मंगदा करदा है। भीख वो तां मंगदा करदा है ते भुख लगी है, उहनूं भुख लगी ते कहंदे किते मंदिर दे बाहर खीर बन रहे ने, लाइन च लग्या, किन्ना चिर बाद इहदी वारी आई ते वो वरताउण वाले कहण लग पए भाई भांडा कित्थे है, खीर तत्ती है तेरा हत्थ समझो, पहला भांडा लेके आ। ये कहना मैनूं दे दो, बड़ी भुख लगी, एक घंटा मैनूं पहला लाइन च लगी हो गया, खीर तेनों दे देवां, हत्थ मच जू। पहला भांडा लेके बेचारा लाइन चों बाहर निकलिया, जे तो भांडा कोई लवे ना पैसे लेके आ। फिर इहने भीख मंगी, मंग 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 के 2 आने इकट्ठे कीते, घुमियार कोल जाके बर्तन लेके आया, भांडा लेके दूजी बार फिर लाइन च लग्या, लाइन च लग्या, जब मेरी बारी आई खीर खत्म हो गई, फिर तड़फण लग पिया, कहना जी दे दो, फिर थले थोड़े लगी जी खीर होनी है वो इनू देती, माड़ी जी दे के पासे बह के खाण लग पिया। ज्यों ही मूँह च गुरकी पाउण लग्या, कहना 2 झोटे भिड़ते हुए आके इनू मारे टक्कर, वो खीर गई उते डुल गई, भांडा जा टुट गया, चीका मारना तो उस वेले जाग आ गई ते ये पसीने नाल भिजिया होया, छाती थर थर कंबदी है, बड़ा क्षोभ इहदे प्राणां विच पैदा हो गया ते ये कहना कि मैं असली रूप मेरा की सी, आ मैं इत्थे सोने दे सिंघासन ते बैठा हां, इत्थे मैनूं नींद आ गई सी, ये मेरा असली रूप आ कि ओ मेरा असली रूप जिहड़ा हुण मैं वेखिया, आए मैनूं भ्रांति हो गई, गुरसिखो अपना असली रूप की है। जैसा सुपना रैन का तैसा जो संसार, जो रात का सुपना ना तिवें ये संसार, और सारा कुछ सुपना ही सुपना है, जन्म तो लेके मरण तक। कोई ब्रह्म ज्ञानी विरला ही जागदा है संसार चो, जाग रहे रे मना, जाग रहे कहाँ गा फल सोया, जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया।
ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਅਛਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਫੇਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਗਤ ਭਈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ? ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ नहीं, महाराजे कहो कभी कि राम की अंश, हम ब्रह्मस्मि, मैं रब हाँ, नहीं कि परमात्मा। पर और सब संसार में आ गए सुपना देखते भुल गए ना, सुपने से बंदा अपने आप को भुलता है वास्तविक स्वरूप को। हुण आपां अपने असली स्वरूप ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਮੰਗਤੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖੋਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈ 20,000 ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਜ ਭਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ, ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ। ਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਸੀ, ਭੁਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਐਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਦੇ ਤੇ ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਟਾਰਚ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਨੇ ਟਾਰਚ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਫੋਕਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰੀ ਗਿਆ ਹੈ ਰੱਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹਤੋਂ ਡਰਿਆ ਤੂੰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਆ ਚੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੋਕਸ ਮਾਰਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਪਰੇ, ਅਬ ਕਹਤੇ ਕਹਿਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਆ ਤੇ ਕਰਾ, ਆ ਛਾਪਾਂ ਨੇ, ਆ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕਾਂਟੇ ਨੇ, ਆ ਹਾਰ ਹੈ, ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਨਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੜਾ ਹੈ, ਛਾਪਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੈ, ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ। तो इस प्रकार ये सारा असली ਉਹਦਾ रूप ਜਿਹੜਾ शुद्ध ਉਹ सोना है। आकार ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। शुद्ध स्वरूप ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਏਕ ਅਨੇਕੈ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਘਟ ਭੋਗ ਵੈ ਸੋਈ। ਸਰਵੇ ਏਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਵਾਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੈ, ਸਹਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ। ਬਈ ਹੱਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅੰਗ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਿਰਦਾ, ਧੜਕਣ ਦਿਲ ਦੀ, ਦਿਮਾਗ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਖਵਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ। ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਾ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕੈ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਘਟ ਭੋਗ ਵੈ ਸੋਈ। ਕਹਿ ਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈਰ ਮੇਰੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਗੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ।